Hello students, our next topic is reserve deposits. You see, commercial bank deposits the money of consumers, peoples, and on that deposit he keeps some money with himself for the daily transactions, for their transaction, and the rest of money he deposits in the reserve bank as a reserve deposits. And the portion which he has kept with him, it is has a two deposits. One deposit he keep for a vault money as a daily transaction. Whenever he has some emergencies, he take that money from the vault money. And the other money which he has as a reserve, he deposit that money in the reserve bank as a reserve deposits. It's a guaranteed deposit which he have to deposit there. And these reserve funds are again of different types. We are going to define them in the terminology. First is statutory liquid deposit, SLR. Statutory liquid deposits are that deposits of the journal peoples in the bank of which the reserve bank keep it with himself. That is mandatory by the reserve bank to keep that amount with them. So this statutory liquid deposit he keep it into two ways. One as for the daily transactions or for the routine of transactions, and the second portion of the statutory liquid deposit, that is SLR, is a vault money. He keep that money in a safe of the bank. Every branch of the bank do this, but they don't. Sometimes they keep their vault money in the district level. There is a lead bank in the all districts. Especially we have authorized State Bank to be a lead bank because it's the biggest bank of the commercial banks. So that vault money is kept there. Whenever they need, they withdraw that money from there. So statutory liquid deposit. Next is CLR, cash reserve ratio. This cash reserve ratio, the portion of the money deposited in the commercial bank, they deposit that money in the reserve bank as a reserve deposit, as a guarantee deposit. This SLR and CLR is controlled by the RBI. So RBI, when it increases the CLR, cash reserve ratio, it means of their total amount deposited in the bank, commercial bank have to deposit a certain proportion or the ratio of their total money deposit in the RBI. If CLR is increased, cash reserve ratio is increased, they have to keep bigger portion or large portion of their reserves in the commercial bank, and the left money SLR will be decreased. For their daily transaction, money will decrease. So commercial bank will lend money in the economy less. Same way, if government RBI increases SLR or decrease the CLR, it means the commercial bank have a bigger portion for the daily transactions. They can lend money to the people, journal people more. So whenever to control the liquidity in the economy or inflation, the RBI uses SLR or CLR, cash reserve ratio, and statutory liquid deposit ratio changes, and the inflation or the liquidity is also changed. These are the methods. The next is reserve ratio. The reserve ratio is the rate of interest on which
the RBI lend money to the commercial banks on the securities, bonds of commercial bank. See, other than this cash reserve ratio and statutory liquid deposit, some transactions that are made with the reserve bank and commercial banks के पास गवर्नमेंट की शेयर्स सिक्योरिटीज रहती, क्योंकि गवर्नमेंट उनसे ट्रांजैक्शन करती है कॉमर्शियल बैंक से। तो कॉमर्शियल बैंक को जब ऐसा लगता है कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, मेरे पास पैसे कम हो रहे हैं, वो स्टेटरी लिक्विड डिपॉजिट को और CLR को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। CLR कैश रिजर्व रेशियो तो कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक में जमा ही करना है उतना, ही कांट चेंज दैट। तो कॉमर्शियल बैंक को जब ऐसा लगता है कि मुझे RBI से लोन लेना चाहिए, तो उस लोन के लिए वो गवर्नमेंट के पास, RBI के पास अपनी सिक्योरिटी शेयर्स को गिरवी रख करके RBI से पैसा लेती है, लैंड करती है। RBI लैंड करती है मनी कॉमर्शियल बैंक को, या कॉमर्शियल बैंक बोरो करता है RBI से। सो ऑन दैट सिक्योरिटीज जो बोरो होता है उस पर RBI इंटरेस्ट लेती है, दैट इज रिजर्व रेशियो। So reserve ratios are the rate of interest that RBI charges on the commercial banks on the loan advance to them on the securities. आज की तारीख में रेपो रेट जो है, रेपो रेट है 0%। सो 4.0% पर RBI से कॉमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज रख करके लोन ले सकते हैं, जितना भी उनको चाहिए। इसके अपोजिट रिजर्व रेपो रेट भी होता है। तो रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच RBI pays to commercial bank when RBI borrows money from commercial bank. Generally हमने पढ़ा RBI does not pay any interest to the commercial banks, और किसी को इंटरेस्ट नहीं देती है डिपॉजिट्स पर। दैट इज CL कैश रिजर्व रेशियो, CRR तो बैंक कॉमर्शियल बैंक को जमा करना ही है, उस पर उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मगर जब कभी कॉमर्शियल बैंक्स के पास पैसे ज़्यादा आ गए, ही कांट लैंड मनी इन द इकोनॉमी, ही कांट इंजेक्ट दैट मनी इन द इकोनॉमी बिकॉज RBI ने पॉलिसी बना के रखी है कि आप इससे ज़्यादा नहीं दोगे। तो ज़्यादा पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास आ गया, अब कॉमर्शियल बैंक को नुकसान हो रहा है। सो इन दैट केस RBI विल कम इन द सीन विथ रिजर्व रेपो रेट। RBI कॉमर्शियल बैंक से कहेगा कि यू डिपॉजिट योर एक्सेस मनी टू मी, एंड ऑन दैट एक्सेस डिपॉजिट RBI will pay a interest to the commercial bank. RBI will borrow that money from commercial bank and pay the interest. So आज की तारीख में जो रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35। अगर RBI कॉमर्शियल बैंक से एक्सेस मनी लेती है तो उनको 3.35% के हिसाब से इंटरेस्ट देगी। मगर अगर RBI से लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक को RBI को 4.0% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो क्यों लेगी लोन भाई? अगर उसको लोन लेने में 4% देना पड़ता है और अगर RBI लोन ले तो उनको 3.35% मिलेगा, तो वो RBI से कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। यानी जितना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास है वो उसी को इकोनॉमी में लाएंगे। और गवर्नमेंट अभी भी चाह रही है, RBI इन द लॉकडाउन ही वांट्स दैट मोर एंड मोर मनी शुड बी लॉन्च्ड और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी शुड बी इंक्रीजेस। सो रिजर्व रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, these are the two things by which the reserve bank controls the liquidity in the economy or controls the inflation in the economy, or we can say
कंट्रोल्स द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। आगे हम कीन्स की थ्योरी में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इज हाई पावर्ड मनी। द हाई पावर्ड मनी इज द टोटल लाइबिलिटी of the monetary authority, that is RBI, the total liability of Reserve Bank to the monetary base of the India is high powered money. The currency and deposited by the government of the India and the commercial bank with the Reserve Bank. The deposits with the Reserve Bank of commercial bank and government, ये उसकी liability है और उतना ही पैसा इकोनॉमी में आना चाहिए। सी हाई पावर्ड मनी का मतलब इकोनॉमी में जितना पैसा लॉन्च करती है आरबीआई, उस पर लिख के देती है कि मैं आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ दिस मनी, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। जितना पैसा आरबीआई इकोनॉमी में लाती है उतनी ही लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों बराबर होने चाहिए उसके पास। अगर गवर्नमेंट आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ और रिजर्व कॉमर्शियल बैंक्स का जो पैसा उसके पास है उतने का ही सिक्योरिटीज़ वो रिलीज़ करेगी। तराजू के दो पार्ट्स बैलेंस बीम बैलेंस दोनों बराबर होने चाहिए। आरबीआई की लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों बराबर होने चाहिए। यानी आरबीआई जितना पैसा इकोनॉमी में लॉन्च करेगी, लिक्विडिटी बढ़ाएगी, उतने ही पैसे की लाइबिलिटीज एसेट्स अपने पास रख लेगी। तो एसेट्स अपने पास रख लेगी, अगर उसको पैसे डालने हैं तो गोल्ड, सिल्वर, शेयर या बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट या बैंक्स, ये अपने पास रख लेगी और उतने ही पैसे का लाइबिलिटी रिलीज करेगी। जैसे अगर इकोनॉमी में 3 मिलियन डॉलर्स आए तो आरबीआई ने 3 मिलियन डॉलर के बराबर की इंडियन करेंसी रिलीज कर दी। तो इंडियन करेंसी जो रिलीज की उस पर लिख करके दिया कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर ए सम ऑफ दिस मच अमाउंट, तो उतनी परचेजिंग पावर इकोनॉमी में होनी चाहिए उसकी। 100 रुपये पे उसको 100 रुपये का सामान मिलना चाहिए, ये उसकी लाइबिलिटी हुई। तो उसने जो 100 करोड़ डॉलर के इक्विवेलेंट मनी रिलीज की, दैट इज लाइबिलिटी। और जो 100 करोड़ डॉलर उसके पास डिपॉजिट हो गए वो एसेट्स है। सो एसेट्स के बराबर ही लाइबिलिटी रिलीज की जाती है, दैट इज हाई पावर्ड मनी। गवर्नमेंट के शेयर्स, शेयर बॉन्ड्स या कॉमर्शियल बैंक्स की जो सिक्योरिटीज शेयर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, ये आरबीआई में डिपॉजिट करके कॉमर्शियल बैंक ने या गवर्नमेंट ने लोन ले लिए, उतने का ही लोन उसको मिला जितना उसने सिक्योरिटी जमा की। तो दिस इज लाइबिलिटी एंड एसेट्स। लाइबिलिटी एंड एसेट्स आर इक्वल ऑन द बिहाफ ऑफ आरबीआई, दैट इज हाई पावर्ड मनी। द टोटल मॉनेटरी लाइबिलिटीज ऑफ द रिजर्व बैंक इज कॉल्ड हाई पावर्ड मनी। Next is open market operation. Open market operation is a method to control the liquidity in the economy. Whenever there is an inflow of the foreign currencies, yes, foreign share markets में by different modes, wherever there is a flow of foreign currency. So the RBI have to release that much amount of liability in the market. तो liabilities बढ़ गई, assets आ गई, इक्वल हो गया हाई पावर्ड मनी। मगर इकोनॉमी में जितनी liabilities उसने भेजी हैं या लिक्विडिटी बढ़ाई है, उतने अमाउंट की गुड्स तो नहीं बनी हैं। द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज लेस। सो परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई और अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज लेस हैं, क्योंकि इनफ्लो के कारण, फॉरेन करेंसी के इनफ्लो के कारण लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, पैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में आ गए, लिक्विडिटी बढ़ गई। सो अब इन्फ्लेशन हो जाएगा,
To control that inflation, RBI makes the open market operation. Under the open market operation, RBI sells the shares, securities, bonds of government or the bank in the public. To the public, to the journal, through commercial banks, and it collects the excess purchasing power which is या excess liquidity in the economy और अपने पास रख लेती है. It keeps that excess liquidity in him with him. So open market operation में गवर्नमेंट RBI sell or purchase of the share, securities, bonds of government and banks करके लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है. अगर RBI परचेज द शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एंड RBI, तो जब वो परचेज करती है तो शेयर्स बाहर बेचती है, करेंसी के रूप में जो लिक्विडिटी है उसको अपने पास रख लेती है. तो एक्सेस मनी या परचेजिंग पावर तो RBI के पास आ गया. सो द परचेजिंग पावर घट गई तो इकोनॉमी में बैलेंस आ गया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया. सपोज गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को बढ़ाना है या परचेजिंग पावर को बढ़ाना है तो RBI उसी शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स को मार्केट में सेल कर देती है. सेल करती है तो कागज बेचती है और शेयर इज ए पीस ऑफ पेपर, और उसके बदले में सेल करके मनी को, कैश को अपने पास रख लेती है. और अगर उसको परचेस करती है तो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज जो कागज के फॉर्म में रहते हैं उनको खरीदती है और इक्विवेलेंट पैसा, मनी इंजेक्ट कर देती है इकोनॉमी में. सो व्हेन द कैश इज इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी, लिक्विडिटी बढ़ जाती है. सो लिक्विडिटी बढ़ गई तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और एग्रीगेट डिमांड्स को कंट्रोल किया जा सकता है. सो वन ऑफ द मेथड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन अंडर विच द रिजर्व बैंक परचेज और सेल्स द बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज टू द public. By this, he controls the liquidity in the economy, inflation in the economy.